वेलकम टू ट्यूसडे गाइस। आज हम लोग देखने वाला बैंक निफ्टी एंड उसमें हाउ क्विक ट्रेड और हाउ उसके पीछे का लॉजिक कैसे प्लान कर सकता था। क्विक डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट अ ग्रुप that provides financial advice or provides calls to the community. We are just here for educational purposes only to better educate the community and better teach how to properly understand the markets. So let's pop straight into the market right here. Uh, so as you can see in the charts here, this was the trade planning that was given in the groups. We had a structural 15 minutes में हमारा structure bearish था. So after we found out our inducement point swing low, and once we found there was a sweeping or like a rejection from a equal highs, we planned our trade for price to come back to the inducement or the not inducement but to the fair value gap, and from there we planned for a sell side trade. The only issue was we didn't get the entry since market straight away pushed downside, and overnight market banta and next day जैसे खुलते ही एक straight candles are almost पूरा टारगेट दे दिया. सो देयर वाज नो वे वी कुड हैव एंटर्ड दिस एंड आज का गैप डाउन के साथ हमारा पूरा टारगेट यहाँ पे 420 पॉइंट्स का टारगेट था. दिस वाज डन. सो दिस वाज ए प्लानिंग दैट वी कुड गिव आउट ऑन द ग्रुप फॉर सेल साइड. So let's leave with the and आज का markets देख लेते हैं which we what we are looking here. So initially we got a straight push down to into candles, so एक अच्छा downside momentum यहाँ पे देखा हम लोगों ने. It's almost 200 yes 220 point something का momentum आया था, and afterwards market थोड़ा यहाँ पे retracement दिया. This is what we call as the order flow. Like market एक downside जा रहा था, there will be always a retracement before next push down, and market वापस उस order block को नहीं तो order block नहीं order flow को retest करने के लिए आता है. So what we have here, this is our order flow right here. So this is our bearish order flow. So what we look for trades here is when price pushes down and next time price जब retrace करता है and ये order flow से एक rejection नहीं तो downside continuation is what we expect. So usually what we do is to find the optimal entry, we take the 0.5 fib level of the order flow. So we take multiple confirmations before our trade execution. So यहाँ पे देखा गया तो यहाँ पे एक सेलिंग एरिया से वापस पुश जब अपसाइड किया, यहाँ पे 0.6 लेवल से परफेक्टली एक सेलिंग कैंडल ट्रांजिट में बना है. बट शुड वी टेक एंट्री हियर? नॉट स्ट्रेट अवे, नो. फर्स्ट वी गो डाउन टू इन लॉ टाइम फ्रेम. वी नीड लॉवर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन क्या है हमारे लिए? डिस्प्लेसमेंट विथ फेयर वैल्यू गैप. फेयर वैल्यू गैप पे वापस प्राइस जब रिट्रेस करके टेस्ट करेगा, then we take a entry, right? So you can see this is the 1 minute set candles, 1 minute lower time frame candles in the 5-minute candle that we just saw. So as you can see here, यहाँ से market perfectly rejection तो ले लिया, but is there fair value gap? That's what we need to find out. So first candle, second candle, third candle, you can see here first candle third candle के साथ mitigate हो चुका है. There is no gaps in between. So this is a proper price action. And next candles भी ये तीनों कैंडल सारे कैंडल्स एक दूसरे के साथ मिटिगेट कर चुका है. तो देयर वाज नो फेयर वैल्यू गैप. सो यहाँ से कोई ट्रेड नहीं तो वापस ये ऑर्डर ब्लॉक के बोल के यहाँ से सेलिंग प्लान नहीं कर सकते. तो हमारे पास यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं थी, इम्बैलेंस है ही नहीं. तो इम्बैलेंस है ही नहीं तो यहाँ पे सेलिंग कैसे प्लान करेगा आपको? भले यहाँ पे ऑर्डर फ्लो से 0.5 लेवल से हमें रिजेक्शन मिल रहा है, बट अवर लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन हमें चाहिए टू गेट ए ऑप्टिमल एंट्री. और लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप सी नहीं था, इसलिए व्हेन मार्केट पुश्ड अप देयर वाज नो वे वी कुड हैव टेकन अ ट्रेड हियर. सो गोइंग बैक टू 5 मिनट्स, दिस इज स्टिल ऑब्जर्वेशंस. हम लोग यहाँ पे ट्रेड अभी तक प्लानिंग किया नहीं. वी नीड व्हाट वी नीड, हम लोगों ने बताया एक स्वीपिंग, कोई एक वैलिड एक हाई नहीं तो एक प्रॉपर जो वही स्विंग हाई जो बन रहा है उसका एक स्वीपिंग, उसके ऊपर से स्टॉप लॉस मार्केट ने निकाला है कि नहीं, मतलब ट्रैप ट्रेडिंग वजह से वो वाला सेटअप्स बन रहा है कि नहीं, ये हमें देखना है. और वहाँ से एक डिस्प्लेसमेंट उसके साथ इम्बैलेंस नहीं तो प्राइसिंग में इम्प्रॉपर मूवमेंट होना चाहिए. सो लाइक हियर व्हाट वी कैन सी हियर, ये कैंडल यहाँ पे लॉस बना था एंड उसके बीच में यहाँ पे इम्बैलेंस है.
सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, प्राइस ऊपर जाके वापस ये इम्बैलेंस फिल कर सकता है। तो इम्बैलेंस मोस्टली जो जहाँ पे पड़ा रहता है वो मार्केट वापस आके फिल करने का चांस बहुत रहता है। सो कम किया, और यहाँ पे सेल कहाँ कर सकते हैं देख सकते हैं अभी। यहाँ पे यू कैन सी प्राइस मूव्ड ऑल द वे अप, एंड ये ऑर्डर फ्लो का ऊपर प्राइस ने यहाँ पे स्वीपिंग किया है। सो यू कैन सी यहाँ पे मार्केट ने इसके ऊपर स्वीप करके एक 5 मिनट फॉरवर्ड कैंडल नीचे क्लोजिंग दी है। सो क्लियर डेट दैट यहाँ पे बहुत, यहाँ पे मार्केट जैसे स्वीप किया, इट हैड ए लॉट ऑफ सेलर्स इन हियर, जिसकी वजह से मार्केट ने डाउन साइड आके क्लोजिंग दिए 5 मिनट में। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 मिनट का एक फिब लेवल मार्क कर देंगे, एंड वी विल गो टू लोअर टाइम फ्रेम फॉर मोर कंफर्मेशन, जो कि हमें फेयर वैल्यू गैप चाहिए। सो एज यू कैन सी हियर, हमने मार्क किया था 5 मिनट का हाई और लो मार्क किया है यहाँ पे, राइट। एंड वी आर लुकिंग एट द 0.5-0.6 fib level, which is like golden zone for like selling, नहीं तो बाइंग के लिए ये प्रॉपर रिट्रेसमेंट लेवल्स बोला जाता है। सो ये प्रॉपर रिट्रेसमेंट लेवल्स यहाँ पे मिल रहा है जहाँ से मार्केट अप डाउन साइड आ रहा है। दैट्स वन कंफर्मेशन, टू कंफर्मेशंस फॉर अस, कोर्स वन स्वीपिंग, सेकंड इज मार्केट यहाँ पे 0.5-0.6 fib लेवल से रिजेक्शंस दिखा रहा है। एंड थर्ड इज वी हैव ए, थर्ड और मेन वाला जो हमें चाहिए, एक fair value gap in lower time frame. You can see this is the fair value gap we have in our lower time frame. So this is fair value gap, and हमारे लिए एंट्री बनता है जब वैसे fair value gap है, हमारे लिए एंट्री बनता है, सॉरी, हमारे लिए एंट्री बनता है fair value gap से एंट्री बन जाता है। एंड द हाई जो भी स्वीपिंग हाई है, नहीं तो वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। एंड आवर टारगेट विल बी 5 मिनट पे वापस जाते एक बार। So our target will be the imbalances in the previous zone, नहीं तो उसका पूरा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर डाउन साइड के लिए पूरा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का हमारा एक्सपेक्टेशन रहेगा। सो टू बी इन द सेफ साइड, यहाँ पे देखा गया तो यहाँ पे ऑलरेडी इम्बैलेंस है, दिस इज इम्बैलेंस है, बट बात ऐसे है कि इसके ऊपर, इस कैंडल के ऊपर कोई भी कैंडल एक्चुअली क्लोजिंग नहीं दी है, तो कैंडल से पे कंसोलिडेशन फेज में, तो वी कैन लुक फॉर ए डाउन साइड फॉर मोर fillings. So what we can do is, first target will be here, post प्राइस ने यहाँ पे एक प्रॉपरली एक अपसाइड पुश दिए विद इम्बैलेंस, व्हाट प्राइस कैन डू, इम्बैलेंस मिटिगेट करके वापस यहाँ से एक अपसाइड और मूव कर सकता है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू कैप्चर हियर इज स्मॉल स्कैल्पिंग पॉइंट, दिस इज बेसिकली स्कैल्पिंग सेटअप। यहाँ पे कोई बड़ा स्विंग हाई स्विंग लो कुछ मार्कआउट नहीं किया, वी आर जस्ट टेकिंग नेट ट्रेड बेस्ड ऑन द स्वीपिंग वी आर गेटिंग हियर, राइट। सो फर्स्टली हमारे लिए टारगेट रहेगा दिस पॉइंट ओवर हियर, एंड सेकेंडली उसके बाद यू कैन टारगेट स्ट्रक्चर का लो ब्रेक के लिए टारगेट कर सकता है। यहाँ पे कुछ हाफ नहीं तो 80% निकालने के बाद कैन टारगेट फॉर द full points over here. So this is what we could have traded here. This would have been our setup. हम लोगों ने पूरा एक्सप्लेन किया ये यहाँ पे एंट्री कैसे बन रहा था। So we understood that, right? यहाँ पे हमारा ऑर्डर फ्लो था, ऑर्डर फ्लो से स्वीपिंग मिला, नहीं तो या 0.5 फिब लेवल से कुछ स्वीपिंग मिल रहा था। उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में हम लोग को फिर इससे कंफर्म करना है इम्बैलेंस है कि नहीं जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसमें। सो वहाँ पे इम्बैलेंस है तो इम्बैलेंस जोन से वी कैन प्लान आउट द ट्रेड, एंड वहाँ से एंट्री लेने के बाद वी कैन लुक फॉर इम्बैलेंस फिल्स इन द प्रीवियस स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर के लो ब्रेक करने के लिए वेट कर सकता है, नहीं तो इम्बैलेंस फिल के लिए वेट कर सकता है टू हैव ए मोर लो रिस्क एंड बेटर, जल्दी निकल सकता है। तो यहाँ पे हमारा रिस्क था कुछ 29 पॉइंट्स का, एंड टारगेट कुछ फर्स्ट टारगेट पे हमारा 76-77 पॉइंट्स मिल रहा है, एंड सेकंड टारगेट तक हमारा 130 पॉइंट्स का मिल जा रहा है। सो यू कैन सी आफ्टर दैट व्हाई वी यूज टारगेट्स स्विंग लोस को ब्रेक करने के लिए सेल करते वक्त स्विंग लोस को पे टारगेट क्यों रखते हैं और ज्यादा होल्ड क्यों नहीं रखते। यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद वापस साइडवेज होके अपसाइड पुश कर रहा था। So that was the planning for the day. This could have been a good trade we could have taken. So ये बाई साइड में देखना है तो यहाँ पे सेटअप बन रहा था, ये भी इंटरनल स्ट्रक्चर है फॉर स्कैल्पिंग ट्रेड्स। I will just show that also here. So yeah, what you can see is market is pushing higher highs here internally.
सो यहाँ पे क्या बन रहा था, और दूसरी एक बात बोलना है। सो यहाँ पे हमारे लिए एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर 15 मिनट्स में मिल चुका है। सो टू कंफर्म ए लोअर लो, एक न्यू लोअर लो कंफर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए, इंटरनल स्ट्रक्चर का मिटिगेशन चाहिए। बेसिकली वी नीड ए इंड्यूसमेंट। तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट पॉइंट के लिए देखा गया तो एक वैलिड पुल बैक ये स्ट्रक्चर है। सो लेट्स डिलीट द प्रीवियस स्टार्टिंग जीरो। इंड्यूसमेंट चाहिए तो दिस बिकम्स अ वैलिड पुल बैक। क्यों वैलिड पुल बैक्स कैसे होते हैं मैंने बताया था। एक लो कैंडल जो बना रहा है उसका हाई इसको दूसरा कैंडल मिटिगेट करके ब्रेक करना चाहिए, तभी एक वैलिड पुल बैक बनती है। यहाँ पर देख सकते हैं ये कैंडल लो बनाया था, उसका हाई को यहाँ पे तोड़ा नहीं गया। सो दिस इज नॉट अ वैलिड पुल बैक, बट दिस इज अ वैलिड पुल बैक। कोर्स ये कैंडल लो बनाया और इस कैंडल का हाई को यहाँ पे ब्रेक करके कैंडल ने नया हाई बनाया। सो वॉट एवर द हाई इज दैट इज इंड्यूसमेंट पॉइंट। जब एक नया लो बनेगा एंड मार्केट उस पॉइंट पे रिटेस्ट करेगा, देन वी विल गेट ए इंड्यूसमेंट पॉइंट एंड एक लोअर लो स्विंग 50 मिनट्स का लोअर लो हमारे लिए कंफर्म हो जाएगा। सो गोइंग बैक टू 5 मिनट्स हियर, तो 50 मिनट्स में हमें पता है यहाँ पे इंड्यूसमेंट है, तो यहाँ पे मार्केट एक बार वहाँ पे रिटेस्ट के लिए आ सकता है। सो वी हैव ए लिटिल बिट ऑफ बायस इन द बाई साइड हियर। ये स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए देख सकता है एक ये सेटअप। मल्टीपल सेटअप्स है जो वो एक सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट रहता है, बट मोस्टली यू कैन मोस्टली सबका बेसिक फिब लेवल एंड imbalance, this is the basic thing we look for in these structures and the setups. These are what validates our setups to take entry. तो 5 मिनट पे यहाँ पे देखा गया तो यू कैन सी मार्केट ने एक बार यहाँ पे एक जो लो बनाया, उसके बाद अपसाइड पुश कर रहा है। एक सेकेंड, दिस विल बी और पीओआई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हियर। एंड यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ने ये हाई बनाया था एंड एक रिट्रेसमेंट किया। सो व्हाट वी विल एक्सपेक्ट इज अगर ये हाई को एक बार इंटरनली ब्रेक कर रहा है, सो व्हाट वी नो ये मार्केट में एक बुलिश स्ट्रक्चर्स बन रहा है। सो व्हेन देयर इज ए नेक्स्ट रिट्रेसमेंट वी कैन टेक ए ट्रेड हियर। तो एज यू कैन सी हियर मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, एक हाई बनाने का रिट्रेसमेंट किया एंड यहाँ से मार्केट ने वापस अपसाइड पुश करके ये स्ट्रक्चर ये हाई को ब्रेक ब्रेक कर दिया यहाँ पे। सो व्हेन वी लुक फॉर एंट्री हियर यू कैन सी मार्केट यहाँ पे हमारे लिए 5 मिनट पे ही अच्छा एक फेयर वाली गैप छोड़ा है। So you don't have to take entry that early. You can look always ऐसे इंटरनली जब देख सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक से, जब स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा है एंड टारगेट यहाँ पे छोटा ही बन रहा है, लाइक स्विंग हाइस यहाँ पे बाई साइड देखना तो स्विंग हाइस हमारे टारगेट बन रहा है। सो वी बेटर टू लुक फॉर ट्रेड फ्रॉम आवर ऑर्डर ब्लॉक। सो ऑर्डर ब्लॉक में भी ट्रेड लेने के लिए स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है तो यू कैन बेसिकली लुक फॉर एंट्रीज। बेस्ट ऑप्टिमल एंट्री होगा फिब लेवल वाला एंट्री। सो यू कैन सी ये मार्क किया and you can see how perfectly market has bounced from our fib level, right? कैंडल का फिब लेवल है ये एंड यहाँ पे 0.6 0.5 के अंदर आया, वहां से मार्केट वापस अपसाइड का ब्रेक मूवमेंट दिया। सो जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे 1 मिनट पे भी देख सकता है। विल शो यू समथिंग लॉवर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन देखना है तो मार्केट यहाँ पे एक एक अपसाइड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के साथ हमें पता चलेगा कि इंटरनली थोड़ा बुलिश है। तो मार्केट हमारा बायास था इंड्यूसमेंट लेने का 50 मिनट का जो अपसाइड है, राइट? सो व्हाट मार्केट कैन डू इज ट्राई टू पुश अपसाइड, थोड़ा थोड़ा करके अपसाइड पुश कर सकता है, नहीं तो बहुत जल्दी इम्पल्सिव मूव दे सकता है। दिस इज व्हाट आवर एक्सपेक्टेशन इज। तो अपसाइड ट्रेड देखना है तो वी विल लुक फॉर कंफर्मेशंस लाइक दिस। तो 5 मिनट में एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हमें मिल गया इंटरनली। सो व्हाट वी लुक फॉर इज लोअर टाइम फ्रेम में भी एंट्री का प्लानिंग करना चाहता है तो, नहीं तो देखना चाहता है, दिस इज व्हाट वी विल गेट। सो यहाँ पे वापस मार्केट नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पे सेम चीज वी हैव टू लुक फॉर विच इज इंड्यूसमेंट एंड sorry not inducement, which we want to look for is imbalance zone, नहीं तो फेयर वैल्यू गैप जो होता। सो यू कैन सी हियर यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, ये एक वैलिड पुल बैक था इंटरनली इस 1 मिनट में इंटरनली। सो दिस इज द हाई मिड एंड दिस कैंडल इसका लो ब्रेक किया है एंड ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर का लो बन रहा है एंड इस कैंडल के बीच में इम्बैलेंस पड़ा है। सो मार्केट बेसिकली ये 1 मिनट वाला कैंडल को, नहीं तो ऑर्डर ब्लॉक 1 मिनट पर स्ट्रक्चर मार्क कर रहा था, ये कुछ ऑर्डर ब्लॉक बनेगा हमारे लिए। यहाँ से मार्केट ने बाउंस दिया। द सेम थिंग वी जस्ट प्लान आउट इन 5 मिनट्स। सो एंट्री ऑलमोस्ट सेम ही बन रहा है एंड हायर टाइम फ्रेम पे थोड़ा ज़्यादा कंफर्मेशन मिल रहा है तो बहुत बढ़िया रहता है। सो हमारे लिए यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता था 21 पॉइंट्स का, बिकॉज वी आर टेकिंग एंट्री ऑन एक्जैक्टली यहाँ पे आने पर बाई कर सकता था। एंड मास्ट हमारा टारगेट रहेगा ये हाई ब्रेक करना है, ये हाई
ब्रेक करने का एक्सपेक्टेशन रहेगा हमारा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट कैसे हमें मूवमेंट दिया है, पे कुछ 1:3 का टारगेट बन रहा है एंड इट इज इजी इजी मूव जस्ट लाइक पहले हम लोग जो देखा था। तो ऐसे स्कैल्पिंग ट्रेड्स हम लोग हर दिन का मार्केट में देख सकते हैं। थोड़ा यू जस्ट हाउ टू ट्रेन योरसेल्फ टू सी दीज इन द मार्केट। मार्केट में ये आइडेंटिफाई करना, ये तो अभी आफ्टर मार्केट होगा, इसलिए कोई भी कुछ भी मार्क करके दिखा सकता है ऐसा होगा करके। बट लाइव मार्केट में ये देखना चाहते हैं तो लाइक यू हाउ टू पोस्ट मार्केट में भी ऐसे एनालिसिस करके मार्केट क्यों ऐसे बिहेव किया, क्यों एंट्री ले सकता था, कहाँ पे टारगेट रख सकता था, ऐसे चीजें लाइक इफ यू लाइक इम्प्रिंट दैट इनटू योर ब्रेन, व्हाट हैपेंस इज नेक्स्ट टाइम इस मार्केट में जब ऐसे मूवमेंट्स हो रहे हैं यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई इट एंड आफ्टर दैट यू विल एबल टू ट्रेड द सेम थिंग। सो मार्केट में क्या होता है, कुछ नया कुछ नहीं है, ऐसे नहीं कि मार्केट अपसाइड डाउन साइड जो जा रहा है वो कुछ साइडवाइज मतलब साइडवाइज नहीं तो मतलब कोई और साइड, कोई नहीं तो कोई कुछ और तरीके से जाना है, ऐसा कुछ नहीं। मार्केट में सेम चीज ही रिपीट करता है, प्राइस एक्शन राइट, बेसिक प्राइस एक्शन। द price repeats itself whatever happens historically. So the same चीज है ये एंड वी आर जस्ट उसके पीछे का लॉजिक समझ के चार्ट को बेटर समझ रहे हैं हम लोग बस यहाँ पे। सो दिस व्हाट यू कैन यूज फॉर ट्रेडिंग स्कैल्पिंग डेज में, मतलब स्लो डेज लग रहा है, मार्केट साइडवेज लग रहा है, ऐसे भी स्कैल्पिंग ट्रेड्स हम लोग निकाल सकता है। कोर्स वी आर मोस्टली हम लोग थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे प्लान कर रहे हैं राइट। 50 मिनट्स में हमारा ट्रेड यहाँ पे प्लानिंग हो रहा है, हम लोग मोस्टली 50 मिनट पे देख रहे हैं। तो 1 मिनट नहीं तो जो बहुत उतना टाइम नहीं है, पूरा पेशेंस नहीं है, उनके लिए ऐसे ट्रेड्स ले सकते हैं। यहाँ पे 1:2 1:3 ट्रेड्स ले सकते हैं एंड यहाँ पे हमारा एंट्री सही होने का चांस बहुत ज़्यादा भी रहता है। सो दिस इज समथिंग यू कैन लर्न एंड यू कैन keep testing it out until you will have a better understanding of the market. So another thing, like if you look for what happens next year, you can see the same thing happening. Let's delete here, ये निकाल दिया। ओके, दिस वाज द लास्ट ऑर्डर ब्लॉक ऑफ हियर, इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स है ये, ठीक है। एंड नेक्स्ट 5 मिनट रिट्रेसमेंट देख सकते हैं मार्केट। यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिए है, 5 मिनट पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिए है, एक नया हाई बनाया तो उसके बाद रिट्रेस कर रहा है। सो वन थिंग यू कैन सी हियर इज देयर इज नो इम्बैलेंस हियर। सो यहाँ पे एक चीज हो सकता है, मार्केट यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा था। So what we can expect is price to give a breakdown or price to move upside. So but हमारे लिए एक बायास है यहाँ पे, which is like 50 मिनट्स पे इंड्यूसमेंट ले सकता है। सो हमारे लिए कंफर्मेशन नहीं तो हम लोग एक रिस्क लेके ट्रेड लेना चाहते हैं तो वी विल ऑलवेज लुक फॉर ए अपसाइड ट्रेड। क्या हमारे लिए 5 मिनट पे इम्बैलेंस नहीं है, बट वी विल चेक इन 1 मिनट टू सी कोई एलटीएफ कंफर्मेशन है कि नहीं। इसी ट्रेंड लाइन पे रिटेस्ट करके ये अपसाइड गया। सो लाइक वट एवर हाउ एवर यू मेक द ट्रेंड लाइन हियर। So like 3 points है यहाँ पे, so if you connect these 3 points we get automatically getting this fourth point over here. So almost trend line से यहाँ पे पॉइंट्स है। So if you look, ये ब्रेक स्ट्रक्चर मिल गया, उसके बाद रिट्रेसमेंट पे, सो रिट्रेसमेंट के टाइम पे ऑर्डर ब्लॉक का फिब लेवल से ही हम लोग हमारा ट्रेड प्लान करेंगे, विच विल बी द ऑप्टिमल एंट्री, कोस्ट रिस्क बहुत कम रहेगा। एंड नाउ लेट्स चेक 1 मिनट पे यहाँ पे कोई इम्बैलेंस जोन से था कि नहीं। ओके, सो यू कैन सी मार्केट यहाँ पे पुश किया, एक रिट्रेसमेंट दिया, दिस इज ए वैलिड रिट्रेसमेंट हियर एंड यहाँ पे इम्बैलेंस जोन भी बना है। सो दिस इज इम्बैलेंस, यहाँ पे इम्बैलेंस जोन पे थोड़ा डिप दिया है, बट ऑर्डर ब्लॉक इज स्टिल हियर, बट यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक स्टिल वहाँ पे वैलिड है। इम्बैलेंस ऑलमोस्ट यहाँ पे टेक आउट किया, बट स्टिल वी हैव ए वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हियर, कोर्स इम्बैलेंस ऑर्डर ब्लॉक वापस रिटेस्ट हुआ नहीं है। सो यू कैन सी हियर मार्केट यहाँ पे वापस इस ऑर्डर ब्लॉक से वापस अपसाइड पुश किया है। सो हमारा ऑप्टिमल एंट्री नीचे था, वो वहाँ पे आया नहीं। यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन का प्लानिंग करके आप एंट्री ले सकता था, बट रिस्क ज़्यादा बनता था, बट स्टिल जो लिया है उसको ऑब्वियसली उसका रिवॉर्ड भी मिल गया होगा। सो यहाँ पे दो एंट्री सेटअप्स बन रहे थे, एक ये 1 मिनट पे था एंड दूसरा ये नीचे वाला 5 मिनट पे जो हम लोगों ने प्लानिंग किया था। सो 5 मिनट का ऑप्टिमल जोन्स आया नहीं है। लाइक हर टाइम हमारा सेटअप्स जो प्लानिंग है वो काम नहीं करेगा। सो यू डोंट हैव टू कैप्चर एवरी सेट ट्रेड्स आउट देयर। तो ऐसे नहीं कि कूद जाना है, कूद गया तो यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना बनता है देख सकते हैं। लाइक वो अपसाइड मूव मिल रहा है, बट व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज कितना हमारा रिस्क होने वाला है एक ट्रेड में, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे रिस्क हमें बस इतना ही रिस्क करना है मार्केट में, विच इज
13 और 14 पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा है विच इज लाइक रिस्की, लाइक थर्ड और फोर्थ रिटेस्ट हो रहा है. सो यू नो व्हाट, लाइक बार बार रिटेस्ट होने पे मार्केट पे गिर सकता है. एंड हमारा 50 मिनट स्ट्रक्चर भी व्हाट इट इज, हमारा 50 मिनट का स्ट्रक्चर भी है ऑन द बेरिश साइड. सो वी डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क. So ये ट्रेड निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे कोई एंट्री ले ली 1 मिनट का लोअर टाइम फ्रेम का इन्फॉर्मेशन के साथ, इट इज़ ओके. द थिंग इज, यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी एक बार बाउंस दिया था एंड यहाँ पे वापस से रिटेस्ट करके फिर गए. तो ये सेटअप थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा ऑप्शंस में ये जो अपसाइड मूवमेंट दी उससे ज़्यादा यहाँ पे जो डिप मारा ना, उससे ज़्यादा ऑप्शन गिर चुका होगा. तो दिस इज ए कंफ्यूजिंग सेटअप. सो इतना कंफ्यूजिंग इसमें एंट्री लेने का जरूरत ही नहीं है हमारे लिए. लेस कंफ्यूजिंग, मतलब पेशेंस रखना चाहिए मार्केट में एंड वेट फॉर द राइट एंट्री. इतना कंफ्यूजिंग वाला एंट्री लेने के लिए जरूरत नहीं है. सो इफ यहाँ पे प्लान किया होता तो मैं यही सेटअप देखता, जाके प्राइस को नीचे आने के लिए वेट करता हूँ. हमारा ऑर्डर ब्लॉक को ये 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक को टच करके गया है, बट ये सेटअप इज नॉट ऑप्टिमल. बट इफ एनीवन took it and holded it, like उनको स्टिल ऑब्वियसली प्रॉफिट मिला ही होगा. एनीवेज दैट्स इट गाइस. बस बैंक निफ्टी का ये सेटअप्स देखने के लिए हम लोग आए थे. हमारे प्लानिंग के हिसाब से हमारा जो सारा रिक्वायरमेंट मीट कर रहे थे, वैसे 2 सेटअप्स हमें मिले, एक 130 पॉइंट्स का एंड नेक्स्ट एक 60-80 पॉइंट्स का, 1:2 1:4 ऐसे सेटअप्स हमें दिखे. एंड थर्ड सेटअप हमारे सारे कंडीशंस मीट नहीं कर रहा था. इट वाज नॉट, प्राइस डिडंट कम बैक टू आवर रिटेस्ट लेवल्स, नहीं तो हमारा ऑप्टिमल एंट्री लेवल पे आया नहीं. सो इट्स बेटर जस्ट टू इग्नोर इट एंड जस्ट लीव इट बी. सारे एंट्रीज हमारा होता नहीं है, सारे ट्रेड्स के पीछे भागना नहीं चाहिए. पेशेंस इज द बेस्ट थिंग दैट एज अ ट्रेडर व्हाट यू नीड. सो यप दैट्स इट गाइस. आज के लिए वही है. नेक्स्ट मैंने बताया था एक ऑलरेडी, आई वॉन्ट बी कमिंग लाइव ट्रेडिंग कुछ महीनों के लिए, कुछ महीनों नहीं, 1 या 2 महीनों के लिए होगा नहीं, बिकॉज आई एम शिफ्टिंग टू बैंगलोर. सो आई विल बी सून बैक विद द लाइव स्ट्रीम्स ऑल्सो. लाइव मार्केट में हम लोग एनालाइज करेंगे ऐसे ट्रेड्स या ऐसे एंट्रीज, हम लोग एनालाइज करके प्लानिंग करेंगे. Till then I will try to record after market videos like this and try to post it. And live market में हम लोग सेटअप्स ऑब्वियसली जो ऑलवेज करते हैं वो बेचते ही रहूँगा, डोंट वरी, वो तो चालू ही रखेंगे. अपने लैपटॉप से वो सेटअप में बेच दूंगा. एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड साइनिंग ऑफ. I'll be